پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار رہیں گے، کپتان ڈٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کی 1-on-1 ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہی رہیں گے۔ تمام افواہیں دم توڑ گئیں، کپتان ڈٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ عثمان بزدار کے جانے کے حوالے سے تمام افواہیں دم توڑ گئیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے تو ایوان وزیر اعلیٰ میں عثمان بزدار نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے ایوان وزیر اعلیٰ میں عثمان بزدار سے 1-on-1 ملاقات کی۔ عمران خان نے عوامی ریلیف کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام اور پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی کارکردگی کی تعریف کی اور جاری رکھنے کی ہدایات کی۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر حکومت کی جانب سے SOPs پر زبردست عمل درآمد کروایا گیا۔ حکومتی اقدامات کے باعث کورونا وائرس کے کیسز میں واضح کمی ہوئی۔ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ عوام کو حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنا اور حکومت کا ساتھ دیتے رہنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی اور اپنے اپنے حلقے کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذوالفقار علی خان، سید فیض الحسن، ملک کرامت کھوکر سمیت دیگر اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو مسائل جلد از جلد حل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ملاقات میں وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی اور عثمان بزدار بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بزنس پارک کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی۔ ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سردار عثمان بزدار ارکان پنجاب اسمبلی سے زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ارکان نے یہ شکوہ کیا، ہمارے حلقے ترقیاتی اسکیم سے محروم ہیں۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کو ارکان اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ جو بھی کنفیوژن ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی، ترقیاتی اسکیمز جہاں ممکن ہے فوری طور پر شروع کی جائے۔ وزیر اعظم کا پنجاب میں کرپشن ختم نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ پنجاب میں نچلی سطح پر کرپشن ختم نہیں ہوئی، ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کا سوال، پنجاب میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کرپشن سے متعلق لاہور، میاں والی اور دیگر اضلاع سے بہت کچھ پتہ چلا۔ بجلی سے محروم علاقوں میں بجلی فراہم کی جائے۔ ریاض فتیانہ کی درخواست، بجلی کی فراہمی کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور فنڈز کی بندش پر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف گزشتہ کئی روز سے صوبائی دارالحکومت لاہور میں سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس نے رکاوٹیں لگا کر ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب بھی جانے سے روک دیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور ملازمین نے آج صبح زمان پارک میں وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ پولیس نے مداخلت کر کے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کیا اور متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ کچھ دیر بعد مظاہرین ایک بار پھر پریس کلب اکٹھے ہوئے اور جلوس کی شکل میں ایوان وزیر اعلیٰ جانے کی کوشش کی، جہاں پولیس کی جانب سے روکنے پر مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس نے واٹر کینن اور آنسو گیس گنز بھی منگوا لی۔ پیف پارٹنرز اور اساتذہ 6 روز سے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مظاہرین کا کہنا ہے کہ معاوضوں کی ادائیگی تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ نون لیگ نے پنجاب بچاؤ تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پنجاب کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ادارے تباہ ہو چکے، ترقیاتی کام تعطل کا شکار ہیں۔ صحت اور تعلیم حکومت کی ترجیحات میں ہی نہیں، صوبے میں بار بار IG اور چیف سیکرٹری کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ کیا گڈ گورننس ایسی ہوتی ہے؟ ڈاکٹرز کے وفد کی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون احسن اقبال سے ملاقات کے دوران YDA کی جانب سے ڈاکٹرز اور ہسپتال عملے کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے حکومت پر سخت تنقید کی۔ کہتے ہیں اس وقت پنجاب پر بدترین حکمرانی کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں 10 سال حکومت کی، لیکن ہمارا مینڈیٹ چرا کر PTI کو دیا گیا۔ سندھ اور KPK میں انہی حکومتوں کو دہرایا گیا۔ پنجاب کی عوام سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے
کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی. وہ پنجاب کا صوبہ جس میں 10 سال شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی خدمت کی گئی، آج اس پنجاب کو پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا متبادل نون لیگ ہے، نیب کی سب سے زیادہ کلہاڑی نون لیگ پر چلی ہے. الحمدللہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی آج پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر یہ بات آشکارا نہیں ہو گئی کہ عمران خان فینومینا واز اے ببل. یہ ایک بلبلا تھا جس کے پیچھے نہ کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی ہوم ورک تھا، نہ کوئی صلاحیت تھی، نہ کوئی اہلیت تھی، نہ کوئی ویژن تھا اور نہ کوئی کمٹمنٹ تھی. عمران خان کا صرف ایک خواب تھا کہ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی تختی لگانی ہے. احسن اقبال نے صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی میں نیشنل ہیلتھ چارٹر بل لانے کا اعلان کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پی ایم ڈی سی کی تباہی کو بلندی تک پہنچا دیا ہے. صحت کا شعبہ بدترین ہو چکا ہے. حکومت پی ایم ڈی سی کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے. کیمرامین محمد مبشر کے ہمراہ زین نقوی، سچ نیوز، لاہور. انجمن تاجران پاکستان کا ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک. تاجروں کا سرینا چوک پر احتجاجی مظاہرہ. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. تاجروں اور ضلع انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. تاجر برادری احتجاج سرینا چوک پر ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کامران چودھری سے. جی کامران. جی بالکل، انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ آج ہارن بچاؤ حکمران جگاؤ تحریک کے نام سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈی چوک میں اعلان کیا گیا تھا. 3 بجے کے قریب جو ہے ملک کے مختلف علاقوں سے تاجروں کے وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ 0 پوائنٹ پر بھی تعینات کر دی گئی تھی. ڈی چوک، شاہراہ دستور، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی. 0 پوائنٹ پر جب قافلے پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پولیس اور تاجروں کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کو جو ہے وہ 0 پوائنٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ تاجروں نے وہاں پہ دھرنا بھی دیا. اور اب جو ہے وہ کچھ دیر قبل مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. تاجروں کی جو مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ وہ سرینا چوک پر جا کر احتجاج ختم کر دیں گے، جس کے بعد جو ہے وہ ضلع انتظامیہ نے سرینا چوک جانے تک کی اجازت دے دی ہے. اور سرینا چوک پہ جو ہے وہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کا باقاعدہ جو ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ تاجروں کو سرینا چوک تک جانے کی اجازت دی گئی. ابھی بھی تاجروں کے بڑی تعداد میں جو تاجر پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر ہائی وے پر جو ہے وہ رواں دواں ہیں. اپارا چوک پہنچیں گے، اپارا چوک سے جو ہے وہ سرینا چوک تک جا کر وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آج کا جو احتجاج ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. جی وہاں پر جا کر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. کامران چودھری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت نے کراچی کو ڈبو دیا. نالوں کی صفائی کے لیے 1 ارب کہاں خرچ ہوا، نالے کچرے سے بھرے پڑے. ان کا کہنا تھا کہ کب تک صفائی اور غربت کا رونا روتے رہیں گے. جتنی کرپشن سندھ میں ہوئی اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بارش میں لوگ مر رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے، کچرا بھرا ہوا ہے. اور یہ کچرا بھرتا کون ہے حمید صاحب؟ یہ کچرا بھرتا کون ہے؟ یہ کچرا بھرتے ہیں انہی کی ڈی ایم سیز 12 سال سے. اور اس کا چیئرمین کون ہے؟ نالے کی صفائی کا جو چیئرمین ہے ان کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہیں. کچرے کی صفائی کے بھی ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں کیونکہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اس کے چیئرمین بھی مراد علی شاہ صاحب ہیں. $8 ملین دیے گئے ہیں، وہ پیسہ کہاں گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے ملک کی توہین ہے، یہ ملک کے لیے بے عزتی ہے کہ نالوں کی صفائی کا پیسہ بھی جو ہے وہ بے ضابطیوں کے نظر ہو جاتا ہے. یہ شہر میرا کراچی کب تک روتا رہے گا؟ یہ شہر میرا کراچی کب تک پانی کے لیے ترستا رہے گا؟
कब तक यहाँ पे वाटर माफिया रहेंगे, कब तक यहाँ पे सफाई का रोना रहेगा। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी, भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर ऑन शराजी से। जी ऑन। जी देखें, बिल्कुल भारत की जानब से एक बार फिर कंट्रोल लाइन की जो खिलाफ वर्जी की गई थी उस पे भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया है और शदीद एहतजाज किया गया है। और भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग की गई वो 17 जुलाई को की गई थी, जिसके इस फायरिंग के नतीजे में 2 लोग जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें एक शकीला बीबी जिसकी उम्र 35 साल थी, जबकि नाजिया बीबी जिसकी उम्र 40 साल थी वो जख्मी हुए। अगर बात करें तो ये इस साल रवां साल 1697 मरतबा भारत की जानब से सीज फायर मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके नतीजे में अभी तक 14 अफराद शहीद जबकि 133 जो है वो जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत से भरपूर एहतजाज किया है और जो भारत को आम सिविलियन आबादी को निशाना ना बनाने का कहा है, और साथ में जो है अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर जो है उनको भी मकबूजा कश्मीर में रसाई देने का कहा है। जी, उनको भी मकबूजा कश्मीर में रसाई देने का कहा गया है। ऑन शराजी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में मानसून की बारिश ने बरसते ही बल्दियाती नुमाइंदों सिंध सरकार के ढोल का पोल खोल दिया। शहर की छोटी बड़ी सड़कें तालाब बन गईं, ट्रैफिक जैम होने से शहरी फंस गए। वाटर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का अमला दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये मनाज़र किसी सैलाब ज़दा इलाके के नहीं बल्कि मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची है। शार फैसल पर ट्रैफिक एहलकार इस शदीद बारिश में भी आवाम की रहनुमाई में मसरूफ रहे। कय्यूमाबाद के इलाके में भी कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल थी। शहरी पैदल कई फीट पानी में चलने पर मजबूर थे। डिफेंस कराची का पोश इलाका, यहाँ घरों में भी पानी भर आया, सड़कों से फुटपाथ उजल हो गए। बोट बेसिन जाने वाली सड़क 1 घंटे की बारिश में डूब गई। ये PECHS का इलाका है जहाँ 4 फीट पानी गलियों में जमा है और गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। मौसलाधार बारिश में मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं, शहरी बेबस तस्वीर बने रहे। जिसकी मोटरसाइकिल चलती रही वो खुश नसीब ठहरा। मोटरसाइकिलों के साथ साथ गाड़ियां भी खराब हुईं। गवर्नर हाउस वाली सड़क पर बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने वाली एक सड़क को बैरियर लगाकर बंद कर दिया। 2 माह कबल बनाई गई सड़क तबाह हो गई। मलिर बाबा विलायत शाह मजार की सड़क 2 फीट अंदर धंस गई। टूटी फूटी सड़क किसी भी ट्रैफिक हादसे का सबब बन सकती है। तामीराती काम के वक्त वजीर आला सिंध ने मलिर की सड़कों का दौरा भी किया था। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को फील्ड में रहने और कामों की निगरानी करने की हिदायत जारी की। वाटर बोर्ड और DMC का अमला कहीं दिखाई नहीं दिया। कराची में बारिश का पानी कायदे आज़म की जाए पैदाइश के अतराफ में जमा हो गया। वजीर मेंशन की इमारत समंदर में जजीरे का मंजर पेश करने लगी। सिंध सरकार ख्वाबे गफलत से जागने तक को तैयार नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ सोलंकी। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी जहां शहर के दीगर इलाकों में जमा हो गया है, तो वहीं ओल्ड सिटी एरिया में कायम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के बाहर पानी जमा है, जिसकी ताहाल निकासी नहीं की जा सकी। सड़क पर जमा पानी से जहां वजीर मेंशन को खतरा है, तो वहीं आस पास के रिहायशियों को आने जाने में भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि बाबाए कौम के घर के एतराब में पानी जमा होना इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल है। जल थल गलियों की वजह से उन्हें अपने घरों से निकलना मुहाल हो गया है। अभी तो कुछ भी नहीं, कल तो बहुत पानी था, हम तो निकल ही नहीं सकते थे, इतने पानी में मार रहे थे। यहाँ पर ये रात को ही पानी कम हुआ है, यहाँ से डर लगता है। अभी तो मैं उनको कि मेरे बेटे को गटर तो नहीं है, डर लगता है उतरने भी मुझे। बोले नहीं मम्मा आप यहाँ से सीधे आ जाओ। चाहे बारिश हो ना हो, यहाँ गटरें भी भरती रहती है, जमीन भी खुदी हुई है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अगर अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से पूरा करे तो पानी जमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछली बारिशों में पानी जमा होता निकल जाता था। इस मरतबा तो बागड़ा बनाया है इन्होंने, इतना खर्चा किया, बड़े बड़े पाइप डाले हैं यहाँ पे। आगे मीठे पानी की लेने भी कट गई थी, बड़े झगड़े भी हुए हैं। ये भी बारिश आई तो वापिस यही हाल हो गया पानी का। बारिशें तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए रहमत होती है, लेकिन KMC, वाटर बोर्ड और दूसरे बल्दियाती इदारों की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी की वजह से जहमत में तब्दील हो जाती है।
वजीर मेंशन है जो पाकिस्तान के बनाने वाले थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी जो रहायश गाह है वो भी इस बारिश से महफूज न हो सकी और इंतज़ामिया का जो पोल है, इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है वो इससे ज़ाहिर नजर आ रही है। बारिश का मौसम कराची वालों के लिए मसाइल का अंबार साथ लाता है। लोड शेडिंग, पानी की अदम दस्तयाबी, नाकारा सीवरेज सिस्टम और जगह जगह लगे कचरे के ढेरों ने कराची वालों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। सिंध सरकार और जिला इंतजामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और इल्जाम तराशी से आगे नहीं बढ़ती। शहरी किसी निजात दहिंदा के इंतजार में है। फिर वही बारिश, फिर वही पुरानी कहानी। एक ही बारिश से कराची हुआ पानी पानी। एक रोज में चंद घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बरसने वाली बारिश ने कराची की सड़कों, गलियों और चौक चौराहों को नदी, नाले और तालाब बना दिया। बारिश हुई तो सिर्फ पानी खड़ा होने के मसले ने ही जन्म न लिया, बल्कि पहले से गर्मी में लोड शेडिंग के 27 शहरियों से बिजली भी रूठ गई। कहीं फीडर ट्रिप हुए तो कहीं तारों में आग भड़क उठी तो कहीं बिजली के तार जमीन पर आन गिरे। सड़कों और गलियों में खड़े हो जाने वाले पानी से बिजली के पोल्स में करंट आ गया। 10 से ज्यादा शहरी मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से जान की बाजी हार गए। कराची में बिजली का मसला हुआ तो सब कुछ के इलेक्ट्रिक के सर डालकर जान छुड़वाई जाती है कि इलेक्ट्रिक जरूर कसूरवार है, लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमती अरकान के इलेक्ट्रिक के मुआविन और मददगार हैं उनको क्यों नहीं पूछा और पकड़ा जाता। कराची में पानी का मसला आज तक हल न हो सका। शहरी बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन हाइड्रेंट्स और टैंकर माफिया ने अरबों कमाकर नई नस्लों के लिए जमा कर लिया। कराची के शहरी तो हर मौसम में और हर हाल में तकलीफ और परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है उन अवाम के नुमाइंदों की कारकर्दगी पर जो अवाम के वोटों से इसलिए मुंतखब होकर आते हैं कि शहरियों के मसाइल हल करें। लेकिन कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी जब ये मसाइल जू के तू दिखाई देते हैं तो अवाम सोचते हैं कि ये अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनका क्या फायदा। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए जो अवाम के मसाइल हल कर सकें। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों का गिरोह गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद और जदीद हथियार बरामद कर लिए। एसएसपी वेस्ट कराची फिदा हुसैन ने कहा, कार्रवाई के दौरान रॉ की जानिब से तरबियत याफ्ता कलअदम तंजीम के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए जो अहम तनसीबात पर हमला करना चाहते थे। कराची में कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको कि नो गो एरिया या कोई ऐसा कुछ कहा जा सके, लेकिन देखें फ्री कंट्री है, ये हमारे पास फ्रीडम है, मूवमेंट का फ्रीडम है, कोई किसी को रोकता नहीं है। तो कोई भी दहशतगर्द जो है वो कहीं पे भी आके रह सकता है, लेकिन इंशाल्लाह सारी एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स हम सब एक्टिव हैं और जैसे कि हमें ये कामयाबी हुई है तो इंशाल्लाह इनके मजलूम मज़ालिम जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुमकिन दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाब बनाने और अलहदा पसंद दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 6 खतरनाक तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने पर सीनियर पुलिस अफसरों और हसास इदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है और बहुत शाबाश दी है और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको रिवार्ड भी करेंगे हम इंशाल्लाह। देखें ब्रास जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये बलोच राजी अजोई संगर, ब्रास कहते हैं बलोच राजी अजोई संगर, और इसमें आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इसमें 5-6 तंजीमें हैं जिन्होंने मिलकर ये बनाई है अफगानिस्तान में। जनरली जो है हमारे पास एक है कि हमें मालूम है कि जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन उसके अलावा इस ग्रुप को अभी तक स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया था किस जगह पे जाएं, इनको अभी एक्टिवेट नहीं किया गया था। इनके पास वेपन्स आ चुके थे, ये रेडी थे, लेकिन अभी इनको ऑर्डर नहीं दिया गया था कि कहाँ पे जाके क्या करें। लाजवाब सर्विस का नया कमाल, पीआईए तैयारा कोरोना मुतासिर मुसाफिरों को लेकर कनाडा पहुंच गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ के दावों की कलई खुल गई। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने पीआईए हुकाम को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। पीआईए के बाकमाल मेजबानों ने फिर कमाल कर दिया। पीआईए की फ्लाइट कोरोना से मुतासरा मुसाफिरों को लेकर कनाडा पहुंच गई। कैनेडियन हुकाम ने तमाम मुसाफिरों के टेस्ट लेना शुरू कर दिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की लाहौर से टोरंटो के लिए जाने वाली परवाज में कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने पीआईए हुकाम को ईमेल के जरिए किया। कैनेडियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक परवाज नंबर 783 पर कोरोना पॉजिटिव मुसाफिरों का ताल्लुक नशिस्त नंबर 22 से 28 से था। इस
वाक़े के बाद कनाडा ने PIA के मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट के सर्टिफिकेट को लाजमी करार देने का फैसला भी किया है। दूसरी जानब PIA ने भी मुसाफिरों को प्रवास से 3 दिन कबल मखसूस लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने का कह दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा था कि पूरी कोशिश है पाकिस्तान से कोरोना का कोई मुतासिर बाहर मुल्क न जाए, इसलिए बाहर मुल्क जाने वालों के लिए भी स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है। PIA मशकूक लाइसेंस वाले पायलट के मामले में पेशरफ सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 17 पायलट के लाइसेंस मनसूख कर दिए। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी बाज़ाब्ता लेटर जारी करेगी। कौमी एयरलाइन अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुतबादिल तलाश कर लिया। यूरोप और बरतानिया के लिए टर्किश एयरलाइन के जरिए मुसाफिरों को सफर करवाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA के जहाजों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। PIA इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को यूरोप और बरतानिया के लिए मुतबादिल इंतजामात शुरू कर दिए गए। PIA तुर्की की फजाई कंपनी पेगासस एयरलाइंस के जरिए अपने मुसाफिरों को बरतानिया और यूरोप पहुंचाएगी। कौमी एयरलाइन और पेगासस के दरमियान 31 जनवरी 2020 को कोड शेयरिंग का मुआहदा हो चुका है। कोड शेयरिंग को मजीद फाल करने के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। PIA पाकिस्तान से मुसाफिरों को तुर्की के सबीहा गौशन एयरपोर्ट इस्तांबुल पहुंचाएगी। 2 घंटे बाद मुसाफिरों को पेगासस एयरलाइन से बरतानिया और यूरोप के उन शहरों में जहां PIA पाबंदी से कबल परवाजें ऑपरेट करती थी वहां मुसाफिरों को पहुंचाया जाएगा। कौमी एयरलाइन यूरोप और बरतानिया के दूसरे 25 मकामात के लिए अपने शेड्यूल फाइनल कर रही है। यूरोप और बरतानिया के लिए एक और मुतबादिल इंतजाम के तहत खुसूसी चार्टर परवाजों के जरिए मुसाफिरों को पहुंचाने के हवाले से भी तगदो जारी है, जिसके लिए फ्रांस की एक निजी चार्टर तैयारा कंपनी से भी बातचीत जारी है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई में पिसती आवाम रिलीफ की मुतलाशी, अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे को ब्रेक न लग सका। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह 10.29% पर पहुंच गई। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। बेरोशुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान चीनी, लहसुन, अंडे, आलू, दही, चावल, चाय की पत्ती, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, ताज़ा दूध भी महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक चीनी की कीमतों में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा जारी रहा और एक हफ्ते के दौरान फी किलो कीमत में 2 रुपए 36 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की फी किलो कीमत 82 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 85 रुपए 32 पैसे फी किलो पर पहुँच गई है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन 4 रुपए, आलू फी किलो 2 रुपए, प्याज 40 पैसे फी किलो महंगे हुए। लहसुन की फी किलो कीमत में 7 रुपए 55 पैसे का सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 1 रुपया फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान गुड़, खुश्क दूध, चावल समेत 23 अशिया महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 10 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत 16 रुपए तक कम हो गई। 96 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 80 रुपए की सतह पर आ गया है, जबकि आटे की कीमतों में भी कमी आने लगी है और गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 83 रुपए सस्ता हुआ है। दाल मूंग 12 रुपए, दाल माश 3 रुपए फी किलो सस्ती हुई। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर, कुकिंग ऑयल और केले भी सस्ते हुए। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान बिजली, गैस, साबुन समेत 18 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा और महंगाई की मजमूई शरह 10.29% की सतह पर पहुँच गयी। आलमी वबा के दौर में अद्वियात की कीमतों का तयन करने वाली अथॉरिटी ही गैर फाल होने लगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं। तब्दीली सरकार का नया कारनामा, ड्रैप अथॉरिटी गैर मौसर होने लगी। ड्रैप के पास अदवायात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 8 के तहत कीमतों का रिकॉर्ड रखना, मुश्तहर करना ड्रैप की जिम्मेदारी है, लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि ड्रैप के पास न कहीं पुरानी मेडिसिन का कोई रिकॉर्ड है और न ही नई अदवायात की फहरिस्त। हुकूमत की वाहिद अथॉरिटी ने नए सिरे से अदवायात की कंपनियों से फहरिस्तें तलब कर ली हैं। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक ड्रैप ने अदवायासाज कंपनियों से तीसरी बार अदवायात की कीमतों का रिकॉर्ड मांगा है ताकि इन्हें हतमी फहरिस्त तश्कील दी जा सके। इससे कबल 3 जनवरी 2017 और 26 मार्च 2019 को भी ड्रैप ने कंपनियों से कीमतों का रिकॉर्ड मांगा था। ड्रैप की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में अदवायात बनाने वाली 811 एलोपैथिक कंपनियों से रिकॉर्ड मांगा गया था। यही नहीं, अदवायात बनाने वाली 1226 होम्योपैथिक कंपनियों से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। किसी भी कंपनी ने ताहाल अदवायात की कीमतों का रिकॉर्ड नहीं दिया।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी सब्जी, दाल और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मार्केट में चेक इन बैलेंस न होने से शहरी मुंह मांगे दाम पर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया। ईद से कबल ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो, अदरक 300, लहसुन 250, लीमू 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। देख तो महंगी हो चुकी है और कुर्बानी आने वाली है, तो ये सरासर हमारे साथ ज्यादती है, हुकूमत की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी ज्यादती कुछ है, क्योंकि आवाम ने भी अपनी तरफ से महंगाई का बहाना रखा है और हुकूमत ने भी इसके बारे में कुछ इकदाम नहीं किए हैं। टमाटर इतने महंगे हो गए, अभी 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इस तरह और चीजें नहीं, मैं नहीं बता सकता सब्जियों की, लेकिन हर चीज महंगी है। बस सिर्फ आवाम की सब की राय है कि हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सब चीजें पर कंट्रोल करे। दिन ब दिन हर चीज बढ़ती जा रही है। शहरी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अब सब्जियां और दालें लेना इनकी इस्तेताअत से बाहर हो गई हैं। आटा भी बहुत महंगा हो गया और दाल, कनून, चीनी बहुत महंगी हो गई है। अवाम हुकूमत को चाहिए अवाम को थोड़ा रिलीफ ले जाए। देखिए अभी बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, मुस्लिम बिरादरी की ईद आ रही है, उसमें जानवर तो छोड़े, टमाटर इतने महंगे हैं, प्याज इतने महंगे हैं, आलू जो 20 रुपए दड़ी मिलते थे आज वो 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। जिले इंतजामिया ग्रांट फरोशों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है मगर महंगाई को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा गरीब अवाम के लिए किसी बोझ से कम नहीं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। चीनी की कीमत कम तो ना हो सकी, लेकिन 3 हफ्तों से मुसलसल इजाफा जारी है। मार्केट में 80 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी की कीमत 100 रुपए तक जाने की बाज गश्त सुनाई दे रही है। आवाम सोच रही है कि कौन है जो इस माफिया को नकेल डाल सके ताकि गरीबों को रिलीफ मिले। वादे पर वादे, दावे पर दावे, लेकिन नतीजा सिफर। अल्फाज का हेर फेर, अवाम को तिफल तसलियां, लेकिन फायदा कुछ न हुआ। चीनी महंगी हुई तो कई माह तक अवाम खामोशी से खरीदते रहे। हुक्मरान भी खुश थे कि कोई बोल नहीं रहा, लिहाजा सब अच्छा है। कुछ अरसा गुजरा तो अवाम की कुव्वत खरीद भी जवाब देने लगी, तो बात एहतजाज तक पहुंची। वहां से बात बढ़ी और मुजाहिरों का सिलसिला तवील हुआ तो हुक्मरान भी जाग उठे। अवाम से चीनी सस्ती करने के वादे किए गए और कई दहाइयों से वादों के सहारे जीते अवाम फिर एक बार वादे सुनकर खामोश हो गए। कुछ अरसा और गुजर गया लेकिन वादों पर अमल न हो सका। बात बढ़ी और अदालत तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीनी महंगी होने की वजूहात जानने के लिए कमीशन बना, जिसका काम था इंक्वायरी करना और हकाइक अवाम के सामने बेनकाब करना। चीनी माफिया को जब अपने गिर्द घेरा तंग होता नजर आया तो इस कमीशन को काम करने से रोकने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने और हरबे आजमाए गए। हुकूमत को डराया धमकाया गया, स्टे ऑर्डर लेने की कोशिशें की गयी, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। अदालती हुक्म पर बने कमीशन ने अपना काम पूरा किया और रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट में जिम्मेदारान के नाम भी सामने आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सब कुछ करने के बावजूद भी न किसी माफिया को सजा मिली, न किसी शुगर मिल्स को ताले लगे, न कोई अदालत पेश हुआ और न ही चीनी की कीमत कम हुई। अदालत ने चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म जारी किया तो एक बार फिर हड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया और 70 रुपए पर फरोख्त से साफ इनकार कर दिया गया। बात यहीं पर न रुकी, बल्कि अदालती अहकामात और इंक्वायरी के बाद से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत में अब मजीद इजाफा कर दिया गया है और ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक जा सकती है। अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें हर तरफ से और हर तरह से फकट टरखाया जाता है। जो मर्जी हो जाए, आखिर भी जीत माफिया की ही होती है। अवाम का ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई पूछने वाला। कौन है ऐसा निजात दहिंदा जो इस माफिया को लगाम डाल सके? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में मुनक्किदा अपने इजलास में मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और ईद उल अजहा पर SOPs को हतमी शक्ल दे दी। मुहर्रम उल हराम और रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी तैयारी पर जोर दिया गया। NCOC की पहली बार कराची में बैठक सजी। वजीर आला हाउस में होने वाले इजलास में मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और SOPs पर मुशावरत की गई। सिंध में कोरोना की सूरत हाल भी जेर बहस आई। इजलास में NCOC के चेयरमैन असद उमर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, NCOC के को लेफ्टिनेंट जनरल और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन NCOC असद उमर ने कहा कि NCOC को सूबों में लाने का मकसद काम मजीद बेहतर करना है। कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा।
NCOC के दीगर इजलास बाकी सूबों में होंगे। मुराद अली शाह ने इजलास के शुरा को वजीर आला हाउस में खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि सिंध में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 12,000 योमिया कर दी गई। हॉटस्पॉट एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए कराची में 2 अस्पताल कायम किए। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई है। जानवर सिर्फ मुकर्रर की गई जगह पर फरोख्त हो सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी हैं। मजीद 4 नौजवान भारतीय फौज की सफाकियत की भेंट चढ़ गए। 3 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। रवा माह भारतीय फौज ने 32 घरानों के चिराग गुल कर दिए। वादी जन्नत में भारतीय दरिंदगी आखिरी हदों को छूने लगी। कश्मीरियों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने रात गए नाम निहाद सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। घरों में घुसकर लूट मार की। नौजवानों ने मुजाहमत की तो उन्हें गोलियां मार कर अब्दी नींद सुला दिया गया। मकबूजा वादी में सिर्फ 3 दिन में 8 नौजवानों से जीने का हक छीन लिया गया। रवा माह 32 जिंदगियों का चिराग गुल किया जा चुका है। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। गैर कानूनी कर्फ्यू के बायस मजलूमों के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर बदस्तूर पाबंदी है। तुलबा हसूल तालीम से महरूम हैं। तिजारती मराकज पर भी ताले पड़े हैं। मोहलक वबा के हमले भी मजलूम कश्मीरियों के लिए आजमाइश बने हुए हैं। और अब खबरें शामिल करें खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी हैं। डर्बीशायर में खेले जा रहे मैच में टीम अजहर अली और टीम बाबर आजम मद्दे मुकाबल हैं। दोनों जानिब से कौमी क्रिकेटर्स शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर सिलेक्टर्स के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। डर्बीशायर में जारी 4 रोजा मैच में पाकिस्तानी बाउलर्स ने क्रिकेट माहिरीन को हैरत में डाल दिया। कंडीशन से हम आहंगी के लिए जारी इस मैच में पहले बाबर आजम की टीम ने 8 विकेट्स पर 231 रन बनाए। टीम अजहर अली के खिलाड़ियों में शामिल नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। लॉकडाउन में होने वाले मैचेस में दोनों टीम्स की जानिब से SOP पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला इम्तिहान 5 अगस्त से शुरू होगा। और बुलेटिन के आखिर में जाते जाते आपको बताएं कि शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन 93वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शहंशाह गजल मेहदी हसन ने जो गाया अमर कर दिया। गजल गायकी का उनका मुनफरिद अंदाज किसी और गुलकार के हिस्से में न आ सका। अजीम फनकार के मद्दा आज उनकी 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। गई बात शनासाई के तो फैल गई बात शनासाई के उसने खुशबू